Hello all, welcome to the Dabhan Learners channel. So today we are going to practice some questions in finding domain range. So let's start with a question. Suppose the question in this question we are having a function which is root of 2x plus 1 divide by x cube minus 3x square plus 2x. Now, as I already told you to find, suppose we need to find domain in this question. So as I already told you to find the domain in any question, we need to find all the values of x which are possible. That means all the values of x at which the function is defined, right? So tell me, this function is defined when? So think about it. What are the restrictions we can put on this function so that this function will be defined? So you can directly say that, ma'am, this function will be defined when the denominator is not 0, right? So denominator can't be 0. This is our first point. Denominator x cube minus 3x square plus 2x can't be 0. Because if denominator is 0, then the overall thing will become infinity, which is not defined. Okay. Second thing, because as you can see this function is basically root of something, and you know root of negative number is not defined, otherwise it will become complex number, right? That means this function will be defined when root of whatever the complete expression, root of that complete expression, that means that complete expression cannot be negative. So we can say that 2x plus 1 divide x cube minus 3x square plus 2x should be positive, right? Or think, can the expression be 0? Suppose that the expression is 0. In that case, your fx will be root of 0, which is equal to 0, which is defined. That means the complete expression can be 0. There is no problem, there is no issue, right? So that means we are fine if the complete expression 2x plus 1 divided by x cube minus 3x square plus 2x will be positive or is 0, right? So प्रॉब्लम तभी है जब ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव है, तभी प्रॉब्लम है. अदरवाइज ये 0 हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है. तो दैट इज व्हाट वी हैव रिटन. Now these are the two conditions given to us. Now let's solve it out. So first of all, I can simplify the denominator. I can take x common, so it will become plus 2, right? And in the numerator we are having this, and we want this to be positive. What else we can do? We can simplify the quadratic expression further. So what we can do, we can put minus 2x minus x plus 2. This is easy, you can do it on your own self. Then after this, you know that the answer will be, we'll take x common, so your answer will be x minus 2 and x minus 1, right? This is your answer. So this is what you are getting, right? So this should be positive. The second thing is that denominator cannot be 0. As we have already simplified, so we can write that x minus 2 and x minus 1. This can't be 0, which means that either that okay, think about this. I am saying that the product of these three numbers, suppose I'm writing this as a, this as b, this as c. So I'm saying the product of these three numbers cannot be 0, which means a cannot be 0, right? Because अगर इन तीनों में से कोई एक भी 0 हो जाता है, बिकॉज ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो अगर इनमें से कोई एक भी 0 पे हो जाता है तब भी जो प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा, राइट? लेकिन हमें प्रोडक्ट को 0 नहीं बनाना है. दैट मीन्स वी कैन नॉट अलाउ x to be 0.
So x can't be 0, x minus 2 can't be 0, सिमिलरली x माइनस 1 कांट बी 0, बिकॉज अगर इन तीनों में से कोई एक भी 0 बन गया देन हमारा डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा एंड हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा. एंड वी वांट कि हमारा फंक्शन डिफाइंड हो, ओनली देन यू कैन एबल टू फाइंड द डोमेन. सो हमें पता है कि x 0 नहीं हो सकता, x 1 नहीं हो सकता और x 2 भी नहीं हो सकता. दीज आर द थ्री थिंग दैट वी नो ऑलरेडी कि ये तीन वैल्यू तो नहीं हो सकती है. ओके, सो वी आर डन विद आवर फर्स्ट सिचुएशन या फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन यू कैन से. सेकेंड रिस्ट्रिक्शन थी कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है ये पॉजिटिव और इक्वल टू 0 होगा. नाउ हियर यू कैन लुक दैट इन द सेकेंड रिस्ट्रिक्शन व्हाट वी हैव रीच्ड टू, we are basically saying that this numerator a and this denominator b, that means we are saying that a by b should be positive or equal to 0, right? Now tell me, अगर आप किसी दो नंबर को डिवाइड कर रहे हो, if you are dividing a by b and you want कि वो a by b पॉजिटिव हो, right? So you can say ना that अगर a by b पॉजिटिव चाहिए तो that means कि या तो a पॉजिटिव हो और b भी पॉजिटिव हो, so that positive by positive बन जाए and then आपका आंसर पॉजिटिव है. This is first scenario. Second scenario can be कि a भी नेगेटिव हो, न्यूमरेटर भी नेगेटिव हो और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव हो. अगर नेगेटिव बाय नेगेटिव करोगे then also you will get positive answer, so that will also work. Third thing is कि अगर जीरो लाना है तो a can be 0, because अगर न्यूमरेटर 0 हो गया, डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो गया, जिसको हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, डिनोमिनेटर नॉन जीरो हम कर चुके हैं फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन में, तो भी चीजें वर्क कर जाएंगी. ओके ओके, आई एम गिविंग यू वन सिचुएशन. सपोज आपका न्यूमरेटर नेगेटिव है लेकिन आपका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, योर आंसर विल बी नेगेटिव, विच वी डू नॉट वॉन्ट, बिकॉज रूट के अंदर नेगेटिव नहीं चलेगा, तो ये फोर्थ वाला केस नहीं हो सकता. दैट मीन्स कि ओनली तीन केस पॉसिबल है, या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो तो आपका आंसर पॉजिटिव है, या दोनों नेगेटिव हो तो आपका आंसर पॉजिटिव है, या फिर न्यूमरेटर 0 हो जाए एंड डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो, विच जो हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो न्यूमरेटर को 0 बनाना है. नाउ बिकॉज आप कह रहे हो कि मैम या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, दीज आर द सिनेरियो. अब हमें ढूंढना पड़ेगा ना कि कब न्यूमरेटर पॉजिटिव है, कब डिनोमिनेटर पॉजिटिव है. तो वी नीड टू फाइंड द केसेस कि कौन सी ऐसी एक्स की वैल्यू है जिसपे न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, या फिर कौन सी ऐसी एक्स की वैल्यू है जिसपे न्यूमरेटर भी नेगेटिव है और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है. आपको ये केसेस ढूंढने पड़ेंगे, राइट? तो ये सारी चीजें जो मैंने रफ में यहाँ पे लिखी है ऑरेंज पेन से, ये आप हटा सकते हो. आई हैव रिटन ओनली टू एक्सप्लेन. एंड देन फाइनली आप यहाँ पे सीखने जा रहे हो एंड यू विल सॉल्व इट यूजिंग साइन डायग्राम. तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप एक साइन डायग्राम बनाओगे. क्या होता है साइन डायग्राम? ये एक डायग्राम होता है जिसमें आप हर एक्सप्रेशन का साइन बताओगे कि कौन सी नंबर लाइन के किस फेस पे कौन सा एक्सप्रेशन का क्या साइन होता है, एंड देन फिर आप लास्ट में बोलोगे कि जहां जहां दोनों पॉजिटिव है वो आपका आंसर है. ऐसा कुछ हम करेंगे. तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे. So you know number line starts with minus infinity, ends with infinity. Second thing आपको क्या करनी है, you will find the critical points. तो you will say कि okay ये जो expression है complete 2x plus 1 divide x into x minus 2 into x minus 1, ये जो पूरा expression है इसके critical points क्या हैं. critical points मतलब कौन कहाँ पे साइन चेंज करेगा. तो आप खुद से सोचो कि आपका 2x plus 1 जीरो कहाँ हो रहा है, ये 0 हो रहा है -1/2 पे, राइट? अब आप खुद सोचो अगर मैं x को 3 पुट करूं, है ना, दैट मीन्स -½ के राइट में पुट करूं 3, तो ये पॉजिटिव आएगा. एग्जैक्टली. अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट की तरफ पुट करूं, सपोज -10 पुट करूं, तो -10 इंटू 2 -10 इंटू 2 +1, ये आपका नेगेटिव आंसर आएगा. तो मतलब कि आप देख सकते हो कि -½ के लेफ्ट में जाओगे तो नेगेटिव आंसर आ रहा है, राइट में जाओगे तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है. एग्जैक्ट -1/2 पुट करोगे तो 0 आंसर आएगा, नो साइन, राइट? दैट मीन्स कि -1/2 इज द क्रिटिकल पॉइंट, बिकॉज इसके लेफ्ट में नेगेटिव आ रहा है, इसके राइट में पॉजिटिव आ रहा है. तो साइन पता लगाने के लिए -½ बहुत क्रिटिकल है. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे. तो ये तो मैंने 2x + 1 का क्रिटिकल पॉइंट बताया. सिमिलरली आप बाकी चीजों का भी क्रिटिकल पॉइंट मुझे बताओगे. तो जैसे कि आई एम ड्रॉइंग कि सपोज 2x + 1 का क्रिटिकल पॉइंट हो गया
2x प्लस 1 का क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा -1/2, x का क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा 0, x माइनस 2 का क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा 2, बिकॉज 2 पे 0 होगा, x माइनस 1 का हो जाएगा 1, राइट। तो ये क्रिटिकल पॉइंट पता चल गया, तो हम इन क्रिटिकल पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे ऑन दिस नंबर लाइन। तो सपोज सबसे पहले -1/2 आएगा, आई एम पुटिंग दिस, then we'll have 0, then we'll have 1, then we will have 2. So I have plotted all of these. Now अब हमें साइन पता लगाना है, बिकॉज हमें दिख रहा है ना कि ये हमें ओवरऑल एक्सप्रेशन, दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन हमें पॉजिटिव चाहिए। सो हमें ये दिख रहा है कि हमें ये ओवरऑल पॉजिटिव चाहिए, तो हमें पता लगाना है कि न्यूमरेटर का पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर का पॉजिटिव है, या न्यूमरेटर कब नेगेटिव है और डिनोमिनेटर भी कब नेगेटिव है। तो हम धीरे धीरे इनके साइन पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम साइन पता लगाते हैं 2x प्लस 1 की, sorry, yeah, here. So suppose हम सबसे पहले पता लगाएंगे 2x प्लस 1 का साइन। नाउ टेल मी, ये जो मैं यहाँ पे नाम लिख रही हूँ सेक्शंस के, तो सपोज A B C D E, तो हमारे पास 5 सेक्शंस हैं। आप मुझे बताओ A सेक्शन में, A वाले पार्ट में 2x प्लस 1 नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव? चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, -1/2 है, सपोज आई एम टेकिंग द वैल्यू -10। अगर आप -10 पुट करोगे 2x प्लस 1 में, तो आपका आंसर क्या आएगा? योर आंसर विल बी नेगेटिव, राइट। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाओगे, ठीक है, बिकॉज इस सेक्शन में, ए वाले सेक्शन में ये नेगेटिव है। सिमिलरली जब आप बी वाले सेक्शन में हो, मतलब -1/2 से बड़ा है आपका नंबर, सपोज -1/4 है, तो आप देखो 2 इंटू -1/4 प्लस 1, सो आपका जो आंसर है वो पॉजिटिव आएगा। सो आप नॉर्मल लाइन ड्रॉ करोगे, नॉर्मल लाइन। देन 0 to 1 में चेक करो, सपोज हाफ पुट करो, हाफ पुट करके देखो, सो आपका आंसर कितना आएगा? 2 इंटू हाफ विच इज 1, 1 प्लस 1 2, पॉजिटिव आ रहा है, अगेन पॉजिटिव डालोगे, राइट। सिमिलरली 1 to 2 में चेक करो, 1.5 डालो, पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव आएगा। 2 to इन्फिनिटी कुछ भी डाल के देखो, 10 4 11 100 कुछ भी डाल के देखो, चेक करो ई सेक्शन में, एंड यू विल गेट पॉजिटिव आंसर। सो अगेन the flat line, and this is what you are getting, this is the sign diagram of 2x plus 1. One more thing is that because 2x plus 1 का critical point is -1/2, right, because 2x plus 1 जो है वो 0 होगा at -1/2, so we will represent this by putting here the open circle, right, so that just that we get to know कि 2x plus 1 जो है वो 0 होगा at -1/2. Okay, so मैं थोड़ा सा ये जो excess है, I'm removing this. Okay, now let's go to the another, which is x. So tell me, in A section everything is negative, so the value of x will be negative, dotted lines. In B section it is also negative. At 0 there should be open circle because critical point है x का वो. Then 0 to 1 positive, 1 to 2 it's positive, 2 to infinity it's also positive. So we are done with the sign diagram of x. Now let's go to third one, which is x minus 2. x minus 2 को अगर हम चेक करेंगे a में, सपोज मैं -10 पुट करती हूँ, so -10 minus 2 I'll get negative. Then in the b part I am getting negative number, suppose -1/4, -1/4 -2 still negative. Then 0 to 1, suppose 1/2, suppose 0.5 पुट करते हैं, 0.5 minus 2, this will be negative surely, so again negative. Then 1 to 2, 1.5 पुट करते हैं, again this will be negative, so हम negative ही डालेंगे. In the e part, the last part, sub 2 to infinity है, suppose we take 3 value, 3 minus 2 is positive, so the positive, right, and we know the critical point of x minus 2 is at 2, तो हमने वहां पे बना दिया है, and we are done. The last one is x minus 1. So here you can check again that in a part, in a section, suppose -10 put करती हूँ, it will be negative. In B section -1/4 put करते हैं, it will be negative. 0 put करते हैं, ठीक है, 0 पे critical point है, but it will be negative. Then 0 to 1.5 put करते हैं, it will be negative. 1 to 2 put करते हैं, 1.5, this will be positive. 2 to infinity में 3 put करके देखते हैं, this will be positive, right, and the critical point of x minus 1 is 1. So यहाँ पे हमने लगा दिया. Now as you can see,
कि हमारा जो न्यूमरेटर है वो 2x + 1 है, हमारा डिनोमिनेटर है प्रोडक्ट ऑफ x, x - 2, x - 1। तो एक काम करती हूँ, मैं एक डिनोमिनेटर के लिए नंबर लाइन बना लेती हूँ सो दैट हमारे लिए इजी रहे। सो डिनोमिनेटर मैंने लिखा है। अब आप खुद सोचो, डिनोमिनेटर इज द प्रोडक्ट ऑफ x, x - 2, x - 1। नाउ टेल मी, in a part x is negative, x - 2 is negative, x - 1 is negative. Negative into negative into negative, you will get negative, right? This is a part. B part में check करते हैं। B part में we have negative, and we have negative, all negative. That means कि what we will do, again negative in B part. C part में we are having positive, negative, negative. So positive into negative, negative, negative into negative, it's positive. So यहाँ पे हम positive डालेंगे. This is positive. Then in the next section we are having positive, negative, positive. So again we will get negative, and then in the last section positive, positive, positive. This will be positive. So हमारा ये denominator बन गया है. So positive कब आए हैं? जब तीनों positive हैं या फिर दो positive हैं एक negative है, right? And यहाँ पे जो critical points हैं वो है 1, 2 and 0, which we know कि denominator 0 नहीं हो सकता, तो हम इन तीनों को include नहीं करेंगे, 0, 1, 2 को हम include नहीं करेंगे। Now आपको clearly दिख रहा होगा, हमने numerator का sign diagram बना लिया, हमने denominator का sign diagram बना लिया, right? Now we will create the sign diagram of complete term, which is 2x + 1 upon x, x - 2, x - 1। हम इसकी साइन डायग्राम बनाएंगे। अब आप खुद सोचो, आपका न्यूमरेटर नेगेटिव है, आपका डिनोमिनेटर नेगेटिव है, योर आंसर विल बी पॉजिटिव इन ए सेक्शन। देन बी सेक्शन की बात करते हैं, आपका न्यूमरेटर पॉजिटिव है लेकिन आपका डिनोमिनेटर नेगेटिव है, यू विल गेट नेगेटिव, ठीक है। देन इन सी सेक्शन आपका न्यूमरेटर पॉजिटिव है, आपका डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, यू विल गेट पॉजिटिव अगेन, right? Then in D, numerator is positive, denominator negative, again negative. In the last part, numerator positive, denominator positive, you will get positive. That means कि यहाँ पे positive आ रहा है, यहाँ पे positive आ रहा है और यहाँ पे positive आ रहा है. So this is your answer. Now हम क्या चाहते थे? हम चाहते थे कि हमारा जो पूरा expression है that should be positive because वो root के अंदर है. So we cannot make it negative. राइट, तो हम नेगेटिव नहीं कर सकते हैं ना पूरे एक्सप्रेशन को। सो दैट मीन्स कि ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, राइट? तो इसीलिए ये वाला सेक्शन हम काउंट नहीं करेंगे और हमारी जो डोमेन होगी वो होगी -∞ to -½ राइट? और हम लिख सकते हैं दिस इज 0 to 1 और फिर 1 से लेके 2 तक नहीं होगा, फिर 2 से लेके इन्फिनिटी तक इट विल वर्क। सो दिस 2 to infinity will work, 0 to 1 will work, -∞ to -½ will work, right? So we can write that, मैं ऊपर लिख रही हूँ, we will write domain is equal to all values of x such that my x belongs to, अब कहाँ बिलोंग करेगा? -∞ से लेके -½ तक वर्क करेगा, राइट? फिर -2 से 0 पर वर्क नहीं करेगा, ओके। और अभी ना एक काम करते हैं, आई एम नॉट पुटिंग द ब्रैकेट्स, तो आई एम जस्ट राइटिंग। सो आई एम सेइंग कि -∞ से -½ तक वर्क करेगा, फिर -2 से 0 पे नेगेटिव है तो रूट के अंदर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, सो हम वो एरिया स्किप करेंगे। 0 to 1 पॉसिबल है, सो 0 to 1 पॉसिबल है। देन अगेन 1 to 2 में नेगेटिव है, वो पॉसिबल नहीं है, सो हम 2 से लेके इन्फिनिटी तक लेंगे, राइट? नाउ बीच में मैं यूनियन लगा रही हूँ बिकॉज 3 अलग अलग सेट हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम ब्रैकेट्स के ऊपर वर्क करते हैं। तो एज यू नो कि -∞ और इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट लगेगा। टेल मी कि 2, ये जो 2 है, 2 से लेके इन्फिनिटी, 2 पे क्या लगेगा? क्या हम 2 को इंक्लूड कर सकते हैं? अगर हम 2 को इंक्लूड करते हैं तो आप देख सकते हो कि अगर हम 2 को इंक्लूड करते हैं तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते। और हमने पहले ही लिखा था कि 0, 1, 2 इंक्लूडेड नहीं होंगे। सो 0, 1, 2 इंक्लूडेड नहीं होंगे तो 2 इंक्लूड नहीं होगा, ओपन ब्रैकेट, 1 भी इंक्लूड नहीं होगा, ओपन ब्रैकेट, 0 भी इंक्लूड नहीं होगा, ओपन ब्रैकेट। अब सिर्फ बचा है -½ तो -½ को हम इंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं? तो मैंने आपको केस बताया था कि 0 पॉसिबल है, दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन कैन बी 0, हो सकता है ना 0। तो 0 होने के लिए अगर न्यूमरेटर में आप x में -½ पुट करते हो तो 0 हो जाएगा,
दैट मीन्स कि वी आर अलाउइंग कि हमारा पूरा एक्सप्रेशन 0 हो सकता है, सो हमारा x माइनस हाफ हो सकता है, तो हम यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट करेंगे. सो आवर आंसर इज माइनस इन्फिनिटी टू माइनस हाफ, जिसमें माइनस हाफ इंक्लूडेड है, 0 to 1 जिसमें 0 और 1 इंक्लूडेड नहीं है, 2 to इन्फिनिटी जिसमें 2 इंक्लूडेड नहीं है, एंड दिस इज योर डोमेन. आई होप कि आपको कंप्लीट साइन डायग्राम समझ आया होगा, एंड आई होप कि आपको पूरे क्वेश्चन समझ आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन में सबसे पहले बोला कि हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, एंड सेकेंड थिंग हमने बोली कि रूट के अंदर इट कैन नॉट बी नेगेटिव बट इट कैन बी 0 एंड इट कैन बी पॉजिटिव, राइट. यहीं पे सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ. सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दिया 1/√x-2, राइट. सो अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो आप बोलोगे कि सी x-2 0 नहीं हो सकता है, बिकॉज अगर ये 0 हुआ तो रूट ऑफ 0 डिनोमिनेटर में 0 आएगा, तो विच इज नॉट पॉसिबल. सेकेंड थिंग इज x-2 नेगेटिव भी नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब x-2 सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, तो मतलब कि x को 2 से बड़ा ही होना पड़ेगा, बिकॉज ये 0 भी नहीं हो सकता और ये नेगेटिव भी नहीं हो सकता है. इट कैन नॉट बी 0, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, ओनली पॉजिटिव, एंड दैट इज वाई आपका आंसर होगा x शुड बी ग्रेटर देन 2. सो आई होप आपको समझ आया होगा. इफ नॉट प्लीज लेट मी नो, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन, एंड इफ यू लाइक इट please like the video and share, subscribe it, and thank you so much. We'll continue this domain and range through by some time, and then we'll go to the next topic. Bye bye, thank you.